Great. So, a lot of people, initially when there were a lot of wars, people who were transfusing blood. Okay. So they said, अरे ह्यूमन बीइंग से खून बाहर निकलता है, वो खून रेड कलर का है, तो इसमें चलो गोट का, शीप का, जो भी वो लोग एनिमल पालते थे उसका खून डाल देते थे, और वो खून डालने के बाद आदमी और मर जाता था. ठीक है. So there was a lot of speculation, and this was, around the 1900s, early 1900s, where there was a gentleman who actually later won the Nobel Prize, and his name was Karl Landsteiner. And he did a lot of research on why blood is rejected from the body. Now, remember, in my entire discussion of blood, I taught you a word called antigen. What's an antigen? Antigen is a part which our body identifies as a foreign body. Yes. So any foreign body, a body which is not a part of the human body, is identified by the body as a foreign body. Okay. Now, to kill this antigen, the body will release another chemical which is called antibody. Yes. So antibodies are nothing but immunoglobulins. Remember, they are globulin proteins which will be giving us immunity. So antibody is created in response to an antigen. ठीक बात. Now Karl Landsteiner was working a lot, and he wanted to know why does this happen that when I give blood from one, so Karl Landsteiner took this one step further. तो सब लोग एनिमल का ब्लड डाल रहे थे, उसने क्या किया, थोड़ा सा ब्लड एक दूसरे ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग में डाला, एंड जब उसने वो ब्लड डाला तो ह्यूमन बीइंग फिर से मर गया. So he was saying, अरे मैं तो ह्यूमन का ह्यूमन में ट्रांसफर किया, तो he should be alive, right? So that means our blood actually differs from some places. Yeah. So that difference in blood was called blood groups, and the chemicals which were actually detected by our body when we transfer blood as foreign bodies, they are called blood group antigens. Okay. So what are antigens? Blood group antigens. Now this is interesting. Karl Landsteiner found out that if he separated RBCs, WBCs and plasma, okay, blood cells अगर आप निकाल लेते हो, तो प्लाज्मा अगर ट्रांसफ्यूज करते हो, तो उसमें उसका ट्रांसफ्यूजन का चांस ज्यादा है. इट इज इजियर टू बी एक्सेप्टेड. ऑफ कोर्स 100% एक्सेप्टेंस नहीं होता है, बट इट्स इजियर टू एक्सेप्ट प्लाज्मा एज कंपेयर टू द होल ब्लड. तो बहुत रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, मतलब हमारा बॉडी फॉरेन ब्लड को फॉरेन बॉडी तभी गिनता है, दूसरे के ब्लड को फॉरेन बॉडी कहां से गिनता है पता है? बाय आइडेंटिफाइंग सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स present on the cell membrane. Glycoproteins present on the cell membrane of RBCs or erythrocytes. So उसने ये बोला कि अगर एरिथ्रोसाइट्स होल ब्लड आप ट्रांसफर करते हो, तो उसमें से हमारा बॉडी एरिथ्रोसाइट्स के सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है एज एंटीजन, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी निकलता है. It was actually a breakthrough. But then there is another problem. If you consider RBC, come on, in the chat box, can you tell me what is the shape of human RBC? Come on. In the chat box, you have to write down what is the shape of the human RBC. हमने किया है RBC का पूरा शेप, सिर्फ डिस्क शेप नहीं, और एक वर्ड है उसके साथ. वेरी गुड. So it is disc shape biconcave. Very good. Everyone has given the correct answer. Disc shape biconcave. Yeah. Our WBCs are amoeboid. Our RBCs are disc shape biconcave. Okay. Now disc shape biconcave cells are those cells which are forming RBCs. They are thinner in the center and thicker at the periphery. अब उसके सेल मेम्ब्रेन पे जाते हैं. अब उसके सेल मेम्ब्रेन पे एक नहीं हजारों प्रोटीन्स होंगे.
ठीक है, सो इसका मतलब हमारे पास हजारों ब्लड ग्रुप्स होते हैं. लकीली लैंडस्टाइनर को समझा एंड लेटर और भी रिसर्च हुआ एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि इस हजारों ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेल्स, only 30 glycoproteins are antigenic. ठीक है, how many glycoproteins are antigenic? Only 30 glycoproteins are antigenic. इसका मतलब है इवन दो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे हजारों ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, only 30 out of them can possibly be identified as a foreign body. So how many blood group systems will I have? I am going to have 30 blood group systems, one for each glycoprotein present on the RBC. याद रखना, मैंने 30 ब्लड ग्रुप्स नहीं लिखा है, मैंने 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम लिखा है. ठीक है, let's understand what Carl Landsteiner said it and said about the system, and then we can elaborate from that. Okay, so Carl Landsteiner came across 3 different RBCs present in humans. Okay, now he located one position. Say this is our position. So her RBC may is looking at the same position only. Okay, at the same position, same location. Now he found that in some human beings, here they have a protein. Okay, here at this position there is a protein like this. In some other human beings there is a protein like this. So I've drawn a different shape to indicate a different protein. And in some third human beings, the protein is completely different like this. Okay. Now he identified that this one, the one that I have marked in red, they were antigenic. But the one which has been marked here in black, even though it was present at the same position, it was non-antigenic. That means it was not identified by our blood as a foreign body. Okay. So he said, जिसे अपन बोलते हैं ना, let the protein be A. So दूसरे का नाम दिया let the protein be B. अब यहाँ पे there was a protein, okay, but it was non-antigenic. That means it was not stimulating antibody reaction. तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने इसको बोला जीरो. क्यों जीरो? Because it did not have any antigen property. कार्ल लैंडस्टाइनर ने बोला जीरो क्योंकि it did not have any antigenic property. और फिर उसने पब्लिश किया लिखते हुए कि ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम. ना जब भी आप ऐसा लिखोगे, द human mind will always read it as ABO. Nobody will read it as AB0. But it was originally intended to signify that it was not an antigen. That zero indicates that it is not an antigen. I'm sure आप लोगों ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुना होगा और जानते भी होंगे, शायद आपका भी ब्लड ग्रुप हो सकता है. बट अगर आपको ये नहीं मालूम था या आपने आज पहली बार सुना कि ये O नहीं जीरो है, it is a light bulb moment for you. Yeah, you can type aha. Yes, so this zero is actually O. Sorry, this O is actually zero. Yeah, so he said that based on the proteins present at a particular location, we have 3 blood groups A, B and O. Okay. Rahul sir, good evening sir. Hello. जी गीता मैम. सर एक बच्ची है परनोमिता करके, से उससे पूछे ना जरा उसका ब्रांच कौन सा है. उसने आईडी प्रॉपरली डाला नहीं है सर. Paromita Sahil, I am unmuting you. Can you please in the chat box, can you please type which branch do you belong to? Paromita, in the chat box please type.
थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, मुझे होस्ट बना दीजिए फिर से प्लीज। अभी कर रही हूँ सर, अभी कर। हाँ हाँ, नो इश्यूज। Okay, so then there was blood group A, then there was blood group B, and then he called it third blood group O. So what was the blood group based on? The blood group was based on the antigen present on RBC, है ना? तो RBC के ऊपर जो प्रोटीन है, एंटीजन इज नथिंग बट अ ग्लाइकोप्रोटीन हियर। सो ए ब्लड ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप क्या, ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप क्यों बोला? बिकॉज उसके ऊपर ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। बी ब्लड ग्रुप पे क्यों बी ब्लड ग्रुप बोला? बिकॉज उसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप क्यों बोला है? पहली बात तो वो ओ ब्लड ग्रुप था भी नहीं, ठीक है, इवन तो हम उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, इट हैज नो एंटीजन, it has a protein which is not identified by the body as a foreign body. Okay, up he gave his theory and it was found to be true. Much later कार्ल लैंडस्टाइनर के दो स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके आरबीसी में वो पोजीशन पे ए ब्लड ग्रुप भी होता है और बी ब्लड ग्रुप भी होता है। ओके, so your research question, are you writing down the research question? Your first research question, ये दो लोग कौन थे? कार्ल लैंडस्टाइनर्स के स्टूडेंट्स थे वो, ओके, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं जिनके उस पोजीशन पे एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। सो दैट ब्लड ग्रुप वाज कॉल्ड ए बी। ओके, सो ए बी ब्लड ग्रुप had what? Had antigen A also and antigen B also. So याद रखना, it does not have antigen AB, it has antigen A and antigen B. Yes, it has antigen A as well as antigen B. Okay, the research question was, you have to tell me the name of the scientist who discovered AB blood group. Okay, they were AB, they were students of Karl Landsteiner. ठीक है, now we now know that A blood group, yes, is मतलब जिसके पास A एंटीजन होता है, A और B एक दूसरे के दुश्मन है। ओके, मतलब अगर उसके पास A प्रोटीन होगा तो वो B प्रोटीन को फॉरेन बॉडी मानेगा, और अगर किसी के पास B प्रोटीन हुआ तो वो A प्रोटीन को फॉरेन बॉडी मानेगा। ओके, and that is why it will produce antibodies. Okay, it's going to produce antibodies. Now we know where is antibody present. Antibody is produced by WBCs, but it is present in the plasma. ठीक है ना? So जिसका A ब्लड ग्रुप है उसके पास होंगे एंटीबॉडीज अगेंस्ट B. क्लियर? सो अगर किसी के ब्लड में ब्लड ग्रुप A है तो उसके आरबीसी में प्रोटीन होगा A और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट B. क्लियर विद दिस? सिमिलरली अगर किसी के आरबीसी में प्रोटीन होगा B तो इट विल आइडेंटिफाई A एज अ फॉरेन बॉडी, सो इसके पास होंगे एंटीबॉडी अगेंस्ट A, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी A. ऑल्सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, समटाइम्स एंटीबॉडीज को हम स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं. So small b means antibody against B. Small a means antibody against A. कभी कभी कुछ लोगों को इससे भी कंफ्यूजन होता है, तो देयर इज वन मोर नोटेशन. एंटीबॉडी बीटा का मतलब होता है एंटीबॉडी अगेंस्ट B. एंटीबॉडी अल्फा का मतलब होता है एंटीबॉडी अगेंस्ट A. नाउ स्मॉल लेटर्स में ही आपको ये जवाब देना है. Can you tell me what will be the antibodies in the plasma of a person with O blood group? Come on, in the chat box, tell me what will be the antibodies in the plasma of a person with O blood group. Very good, Khushi, you're correct. So Ramya, think again.
निरंजन करेक्ट, सलोनी करेक्ट, श्रेया करेक्ट, जय करेक्ट, अदिति करेक्ट। लॉजिक है ना, ओ के पास देवांगी करेक्ट, ओ के पास ए नहीं है, बी नहीं है, तो वो ओ को भी, ओ विल आइडेंटिफाई ए एज अ फॉरेन बॉडी एज वेल एज बी एज फॉरेन बॉडी। तो इसके पास एंटीबॉडीज होंगे, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, yes, and it will have antibody against B. Yeah, so it will have small a, correct, as well as small b. Okay, did we understand this? क्योंकि O has no antigen मतलब उसके बॉडी में it is not identified as a foreign body, है ना, तो उसके पास ना A है ना B है, so वो A को भी फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करेगा और B को भी फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करेगा। समझा? अब अगर किसी पर्सन के पास ए और बी दोनों प्रोटीन्स हैं, अगर किसी पर्सन के पास ए और बी दोनों प्रोटीन्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी के पास कौन से एंटीबॉडीज होंगे? एंटीबॉडी अगेंस्ट ए या एंटीबॉडी अगेंस्ट बी? तो ब्लड ग्रुप ए बी के पास, सब लोग ने सही लिखा है, ब्लड ग्रुप ए बी के पास ए और बी दोनों प्रोटीन्स हैं, तो इसका मतलब वो ए को भी अपना अपना हिस्सा समझेगा और बी को भी अपना हिस्सा समझेगा। सो ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। इतना समझा? Okay, then what will this blood group do? This blood group can receive blood from some blood groups, and this blood group can donate blood to some blood groups. Okay, तो चलो ये सोचते हैं ना, सपोज अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ए ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता हूं और मैं ए ब्लड ग्रुप को दे सकता हूं। क्लियर? ये तो सिंपल है, सेम ब्लड ग्रुप्स एग्जैक्टली हम दे सकते हैं, तो ये भी बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ये ओ को दे सकता है, ओ को ले सकता है। समझा? ये ए बी को दे सकता है, ए बी से ले सकता है। ये तो एकदम सिंपल हो गई बात। Now let's understand. Now suppose if I am having A blood group and somebody gives me B blood group, my body is going to identify it as a foreign body and reject it because it has B antigen. ठीक है? So ये नहीं जा पाएगा। Suppose I am having A blood group और किसी ने मुझे O blood group दिया, तो O blood group में तो कोई एंटीजन होता नहीं है, और क्योंकि O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन होता नहीं है, माय बॉडी विल नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ फॉरेन बॉडी एंड O कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, O कैन बी रिसीव्ड। नाउ सपोज मेरा ब्लड ग्रुप A है और मेरे को किसी ने AB ब्लड ग्रुप दे दिया, तो AB ब्लड ग्रुप दे दिया, तो AB के पास A भी है और B भी है, पर मेरे बॉडी में तो सिर्फ A है ना, मेरे बॉडी में A है, पर जो मुझे ब्लड दिया गया उसमें A प्रोटीन और B प्रोटीन है, तो ये जो बी प्रोटीन है उसको मारने के लिए मेरा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और जब बी प्रोटीन मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रॉब्लम होने वाला है? वो आरबीसी मर जाएगा, इवन इफ ओनली बी को मारने की कोशिश की जाए। सो दैट इज व्हाई ए विल रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ। बाय द सेम लॉजिक बी विल रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम बी एंड ओ। ओके, O will receive blood from O. चलो अगर O ब्लड ग्रुप है और मुझे A ब्लड ग्रुप किसी ने दिया, तो मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, बिकॉज मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मेरा बॉडी A को भी आइडेंटिफाई करेगा एज अ फॉरेन बॉडी, B को भी आइडेंटिफाई करेगा एज अ फॉरेन बॉडी, और किसी के आरबीसी में A और B दोनों है तो डेफिनेटली उसको फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, नाउ सपोज मेरा ब्लड ग्रुप AB है, सो मेरे लिए ए भी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है, मतलब मेरे लिए ए भी नॉर्मल बॉडी और बी भी नॉर्मल बॉडी है, और अगर आप देखोगे तो मेरे बॉडी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मैं ए बी या
ए बी ओ कोई भी ब्लड ग्रुप डाल लूं, बॉडी एंटीबॉडी है ही नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं है इसके वजह से कोई भी आरबीसी मरेगा ही नहीं। यू अंडरस्टूड दिस? तो मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ए से भी मिल सकता है, बी से भी मिल सकता है, ओ से भी मिल सकता है। वो इसके लिए क्योंकि उसके बॉडी में ए बी ओ को लेके कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। सो देयर इज नो एंटीबॉडी as far as the AB system is concerned. ठीक है? Right. Now let's see what A can donate to. Now A can donate blood to A, obviously. A cannot donate blood to B because it will be identified as a foreign body. A cannot donate blood to O because it will be identified as a foreign body. So A can donate blood to AB. I hope you all are noting it down as we speak. By the same logic, B can donate blood to B and AB. Okay. By the same logic, O can donate blood to, because it has no antigens, it can donate blood to A, can donate blood to B, and it can donate blood to AB. It can donate blood to all the 4 blood groups because it has no antigen. And AB can donate blood only to AB. Because if AB gives blood to A, वो reject हो जाएगा. If AB gives blood to B, वो भी reject हो जाएगा. So AB can donate blood only to AB. Did we understand this? So blood groups are nothing but glycoproteins present. अब अगर आप देख रहे हो तो हमने सिर्फ वन पोजीशन पे वेरिएशंस देखे, ठीक है? Just so that you understand, let's call it the 6 o'clock position, है ना? जैसे एक क्लॉक में पोजीशन होता है, इट्स कॉल्ड द 6 o'clock पोजीशन, ठीक है? अब क्योंकि वो 6 o'clock पोजीशन है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में 2 तरह के एंटीजन ही होते हैं, बट उसका कॉम्बिनेशन है। सेम 6 o'clock पोजीशन पे या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए और बी दोनों होंगे, या तो एक दूसरा ही प्रोटीन होगा जो एंटीजेनिक नहीं होगा। बेस्ड ऑन दैट देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। सो याद है ऐसा 30 पोजीशंस है। सो अगर मैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करूं तो देखो इधर कितने ब्लड ग्रुप्स मैंने देखे, 4, बाय लुकिंग एट ओनली वन पोजीशन। सो इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको कि 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है, 30 ब्लड ग्रुप नहीं है। देखो एक पोजीशन पे चेक किया तो मुझे एक पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम मिला जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स है। ओके, सो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने चेक किया तो 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम आए। ऐसे 30 अलग अलग पोजीशंस पे जब हम ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो मुझे 30 अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मिलेंगे और हर सिस्टम में अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होंगे। Did you understand the difference between blood groups and blood group systems? Okay, so if I only look at the ABO system, if I only look at the ABO system, I don't look at any others. Okay, can you tell me what is the universal donor? Universal donor जो सबको दे सकता है, जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कैन डोनेट इट टू एवरीवन। ये देखो, कैन डोनेट टू ऑल 4। यस, yes, most of y'all gave me the correct answer. 1 or 2 people just flipped it. So now similarly, what is the universal recipient? Yes, y'all are absolutely right. The universal recipient is AB. Yeah, because it can receive from everyone. Now you're in 12th standard, so MCQ. Can you tell me universal donor, ठीक है, can receive blood from? Come on. Universal donor, that is O blood group, can receive blood from? अगर आपके सामने वो टेबल है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर था,
receive. It can receive blood only from itself. So from O only from itself. So I remember, so this is a brain tag which helps me in remembering that universal donor दानवीर कर्ण है, ठीक है? वो देता सब कुछ सबसे सबसे सबको है, पर लेता सिर्फ अपने आप से. It gives it to everyone, but it takes only from itself. एक और सेम चीज होगी और अदर सिमिलर चीज होगी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैन डोनेट ब्लड टू. कम ऑन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैन डोनेट ब्लड टू. Universal recipient is AB. Very good, all of you are right. It will donate blood only to AB. So I remember it as AB is like a miser. माइजर समझते, कंजूस, मक्खी चूस. वो लेता सबसे है पर देता सिर्फ अपने आप को है. So universal donor can give it to everybody but can receive blood only from itself. Universal recipient can receive from everybody but it can donate blood only to itself. इतना समझा? Then later on there was a concept by a gentleman called Wiener. So Wiener also had a concept. He showed it to Karl Landsteiner, and Wiener and Landsteiner also discovered another blood group system. Okay. Now, what is the meaning of the blood group system? I am going to change the position. मतलब अगर पहले मैं 6 o'clock पोजीशन पे देख रहा था तो अब मैं कोई दूसरे पोजीशन पे देख रहा हूं. तो Wiener actually discovered a protein, an antigenic protein on some other position. So some humans had that antigenic protein and some humans didn't have any antigenic protein there. Now, when that antigenic protein was analyzed, ये जो antigenic protein analyze किया गया, उसमें पता चला कि this antigenic protein is commonly found in a special type of monkey called the rhesus monkey. So rhesus monkey के RBC में ये प्रोटीन मिलता है, ठीक है? Now ये पता हुआ कि around 85% of humans also had this protein and 15% humans didn't have this protein. And that's why we say na monkeys are our close ancestors. इसके बहुत सारे reasons है, but this is one more reason. So 85% humans had the same glycoprotein which is found in the RBC of rhesus monkey and 15% did not. So कार्ल लैंडस्टाइनर ने ए बी, वो जो ओ था ना, अच्छा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, जो ए बी उसके बाद सी आता है, तो उसने ओ को सी लिखा था पहले और बाद में पता चला कि वो सी नहीं है, वो ओ है, मतलब इट इज नॉन एंटीजेनिक. तो इसीलिए उसने उसका नाम बाद में चेंज कर दिया ओ. उसके बाद वीनर आया, तो कार्ल लैंडस्टाइनर और वीनर ने मिलके इसको नाम दिया था डी, जैसे ए बी और डी है. फिर बाद में दोनों को पता चला कि वो एबीओ सिस्टम अलग ही है, वो अलग पोजीशन पे है और ये वाला प्रोटीन अलग पोजीशन पे है, तो इसको एक दूसरा नाम दिया गया. दिस इज कॉल्ड द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. Yeah, what is the difference between AB and RH blood group system? AB and RH blood group systems are different because the proteins are located on two different positions. Okay, and because the proteins are located on two different positions, the blood group systems are only different. So according to this blood group system, we have two blood groups. Okay, now this is a simpler blood group system, unlike the complicated AB system. Here one blood group is called RH positive, the second one blood group is called RH negative. Correct? Why is it called RH positive or RH negative? All blood groups are given the name based on the protein or antigen present on RBCs, on the cell membrane of RBC.
सो ये सिंपल है, अगर RH पॉजिटिव है मतलब क्या है, इसके आरबीसी पे रीसस मंकी का ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन है, सो वी कॉल इट RH एंटीजन, एंड RH नेगेटिव में देयर इज नो एंटीजन. So what is going to be the antibody against this antibody in plasma? Yes. अब RH एंटीजन है तो वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेगा. So RH antigen will have no antibody against itself. बराबर. But RH negative antigen नहीं है उसमें, so it will have antibody against RH, anti-RH. Clear with this? So RH positive has a protein called RH antigen जो rhesus monkey में मिलता है, इसीलिए उसका नाम है. So simple है, RH positive मतलब RH प्रोटीन है, RH नेगेटिव मतलब RH प्रोटीन नहीं है. अगर RH प्रोटीन होगा तो वो खुद को फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो RH के रिलेटेड उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा. अगर उसके पास RH एंटीजन नहीं है तो डेफिनेटली एंटी RH एंटीबॉडीज रहेंगे उसके पास. सेम लॉजिक इधर अप्लाई करते हैं. कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम and can donate blood to. Okay, तो can receive blood from. अब RH के पास तो सेम लॉजिक, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ये अपने अपने ब्लड ग्रुप्स को डेफिनेटली डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स पुट इट दिस वे. सपोज मेरे पास RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, और मुझे RH नेगेटिव ब्लड दिया गया. तो RH नेगेटिव ब्लड में तो कोई RH एंटीजन नहीं है, तो क्योंकि RH एंटीजन है ही नहीं, मेरा बॉडी विल नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ फॉरेन बॉडी. सो इफ आई एम हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड, आई कैन डेफिनेटली गेट ब्लड फ्रॉम RH नेगेटिव पर्सन. क्लियर? Now if I apply this logic to RH negative, वो hold true नहीं करेगा. So if I am RH negative person and if मेरे को किसी ने RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया, तो क्या होगा? RH नेगेटिव हूं, मेरे बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है, तो मेरा बॉडी RH पॉजिटिव जो RH एंटीजन वाला ब्लड आएगा will identify as a foreign body and it will destroy it. So RH positive can receive blood from RH positive, RH negative, and RH negative can receive blood only from RH negative. Now the same logic for donation, RH positive can donate to RH positive but not to RH negative. RH negative can donate blood to RH negative as well as RH positive. So if I look at the blood groups, RH system, according to the RH system, what is the universal donor, children? And according to the RH system, what is the universal recipient? In the chat box, write down donor and recipient. According to the RH system, what is the universal donor and what is the universal recipient? Okay, so Ramya, correct? Right, Khushi? Right, Devang? No, Devang, you'll have to think again. Akhilesh, correct? Niranjan, correct? Chinmay, Saloni, we are talking about the RH system, not the ABO system. Rimjim, Rimjim, there is some error in the typing. Okay, great. So I'll just tell you, universal donor can donate blood to, दोनों को कर सकता है. So universal donor is RH negative and universal recipient will be RH positive. Now remember, AB system is present on a different location and RH system is present on a different location. So I can have variations in blood group. If I combine these two systems together, I can have an A RH positive. मतलब blood group A है
ARH पॉजिटिव कैसा होगा? यहां पे A ब्लड ग्रुप और यहां पे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब A नेगेटिव कैसे दिखेगा? सपोज ARH नेगेटिव हम बोलते हैं, ठीक है? सो ARH नेगेटिव कैसा दिखेगा? A ब्लड ग्रुप है इधर, बट RH के पोजीशन पे नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन है। समझा? सो ऐसे अगर मैं कंबाइन करूं तो 4 ब्लड ग्रुप्स ऑफ ABO सिस्टम एंड 2 ब्लड ग्रुप्स ऑफ RH सिस्टम, तो टोटल मुझे 8 ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। बाय द वे, I have only combined 2 blood group systems. ठीक है? ऐसे 28 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स और बाकी हैं जिनके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है. So that is your second research question. Apart from the ABO blood group system, you are supposed to tell me any 4 blood groups. There are 28 more, right? You are supposed to tell me any 4 blood group system. ठीक है? So that's your second research question. ABO blood group system. पहला था कि AB ब्लड ग्रुप किसने बताया, बनाया, ओके? और दूसरा क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम 28, apart from these ABO and RH system, you have to tell me 4 more blood group systems. Okay. Now, can you tell me what is the rarest blood group system? Khushi, you have asked me one question right now, an earlier question of donor and recipient. Wait, I will be teaching all that. Okay. So can you tell me what is the rarest blood group in humans? I want ये 8 blood groups में, मतलब ABO system और RH system में combine करके guess करके बताइए मुझे what will be the rarest blood group system in humans? What will be the rarest blood group system in humans? Rarest का मतलब समझा? Rarest का मतलब ये होता है कि अगर मैं इंडिया में देखूं तो कुछ लोगों का A ब्लड ग्रुप होगा, कुछ लोगों का B होगा, कुछ लोगों का A होगा, कुछ लोगों का AB होगा, है ना? कुछ लोगों का RH पॉजिटिव, कुछ लोगों का RH नेगेटिव. तो मुझे ये बताइए आप कि अगर मैं काउंट करूं, ये तो स्टैटिस्टिक्स है पूरा, आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वर्ल्ड में ह्यूमंस में सबसे कम रहे होंगे? Now, barring 3 people, all of you have given me the incorrect answer. Okay, right? Jay, you are one amongst them to give me a correct answer. Shamika, correct. Okay. Now लॉजिक देखो, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो 2 पार्ट्स है इस आंसर के, पहले तो ABO सिस्टम का और दूसरा RH सिस्टम का. कैन यू टेल मी रेरेस्ट ब्लड ग्रुप के पास RH पॉजिटिव होगा कि RH नेगेटिव होगा? रेरेस्ट ब्लड ग्रुप के पास RH पॉजिटिव होगा कि RH नेगेटिव होगा? करेक्ट, सब लोगों को मालूम है RH नेगेटिव होगा. अभी मैंने बताया था 85% ह्यूमंस के पास RH पॉजिटिव है और 15% के पास नहीं है. ओके. अब जब ABO सिस्टम आप देखते हो तो कौन से सिस्टम की डिस्कवरी सबसे आखिरी में हुई? ABO सिस्टम के डिस्कवरी में कौन से सिस्टम की कौन से ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी सबसे आखिरी में हुई? वो भी कार्ल लैंडस्टाइनर इतना रिसर्च करने के बाद भी नहीं पता कर पाया, उसके स्टूडेंट्स ने ये की. वेरी गुड, अब सबको स्टोरी याद आ गई, राइट? सो कैन यू टेल मी वो क्यों रही होगी? क्यों कार्ल लैंडस्टाइनर जिसने इतना सारा रिसर्च किया उसको वो ब्लड ग्रुप नहीं मिला और उसके 2 स्टूडेंट्स को मिला? राइट खुशी, बिकॉज इट वाज रेयरेस्ट. सो द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप is ARH positive, sorry, ABRH positive, ABRH negative. ABRH negative is the rarest blood group in humans. Okay, can you tell me what will be the commonest blood group in humans? If ABRH negative
is there, then what is the commonest blood group in humans? Okay, now this is um, okay. Some of you all have given it correctly. It is ORH positive. So ORH positive is the commonest blood group in India. ABRH negative is the rarest blood group in India. Now let me give you an interesting perspective. Okay. Universal donor. Universal recipient. Come on, very quickly tell me what is the universal donor. Come on. Combining ABO and RH system together, what is the universal donor? What is the universal donor, children? Come on, type. The universal donor is obviously O, and from our RH system, it is RH negative. What is the universal recipient? AB RH positive. कुछ नहीं, ये सिस्टम का O डोनर था, ये सिस्टम का यूनिवर्सल डोनर RH नेगेटिव, दोनों कंबाइन कर दिया, तो ABO सिस्टम का यूनिवर्सल डोनर और RH सिस्टम का यूनिवर्सल डोनर कंबाइन कर दिया. Okay, now look at this. What is the commonest blood group? What is the commonest blood group? And what is the rarest blood group? So commonest blood group is O, rarest blood group is AB, but RH में उल्टा हो जाता है, तो RH positive is the commonest blood group and RH negative here is the rarest blood group. So do you see some kind of an interesting, it's just a coincidence, but you see some kind of an interesting relationship. अगर आप ABO system से compare करेंगे तो I remember it, most of the humans are donors. समझा? Very few humans are misers. इसका क्या मतलब है? ABO system में O most of the people को होगा और AB कम people को होगा. But RH positive will be seen in more people and RH negative will be seen in less people. So do you see this relationship? Mark it important. Confused नहीं होना है. If I don't know the blood group of a patient, okay, which blood is safe to be given in patients? Which blood group is safe to be given in patients? ORH negative. ORH negative is safest to be given in, yes, Chinmay, correct. All right. All right. So now all of you are going to come on a fresh page. Okay. जहां पे हम बनाने वाले हैं blood group can receive from or can donate to. Okay, so fresh पेज पे लेना और एक एक सेंटेंस छोड़ के लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, right? So blood groups, there are 8 blood groups. Now I'm combining this together. So there are 8 blood groups. So ARH positive, ARH negative, BRH positive, BRH negative, ABRH positive, ABRH negative, ORH positive, ORH negative. Okay, अच्छे से बनाओ और I will give you clock time, say about 5 minutes to finish this table. Okay, let me see how much you can complete. Okay, so I'm giving you about a minute to make the table and after that your time will start.
Yeah, some people are asking ki, sir, is ORH positive same as O positive? Yes, but actually it is incorrect because जब हम O positive बोलते हैं तो O positive का मतलब होता है कि O है ना? But the positive and negative in a blood group only means about RH. So बहुत सारे लोग ने वो RH खा गया है, O positive O negative बोलते हैं, ठीक है? But O positive का मतलब है ORH positive. O negative का मतलब है ORH negative. ठीक है? All right, your time 5 minutes for this starts now. If you finish it, uh, you can just think, sir, I have finished.
Yes, so your time is up and about 3 or 4 kids could only do it. However, you don't even need 5 minutes. You can complete this entire table in less than a minute. Yeah. Great, Aditi, Shamika, Khushi, Suramya, Josna, Antara, very good. Now, are you ready for knowing a technique which will help you complete this table in less than 1 minute? If you are as excited to know the technique, you know what to do. Type bio, bring it on. Okay, great energy, great energy. Now let's understand one thing. Now आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आप ए और आर एच या बी और आर एच साथ में देख रहे हो. ठीक है, आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ए जो प्रोटीन है और आर एच प्रोटीन ये अलग अलग जगह पे होता है ना. तो अब दोनों को सेपरेट कर दो. तो पहले लेते हैं ए. अब अपने को याद है ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ and can donate blood to A and AB. ये याद था अपने को, correct? So A can receive blood from A and O, donate blood to A and AB. Same logic से B can receive blood from B and O and donate blood to B and AB. नीचे भी B लिखा हुआ है, right? So अगर आपको ये मालूम है, can receive blood from A, B, AB and O, can donate blood only to AB. Yes, ये दोबारा से लिखना है. Can donate blood only to AB. O can receive blood only from O, but can donate blood to A, B, AB and O. A, B, AB and O. ठीक है. सो अगर आपको वो याद था तो ये लिखने में आपको 30 सेकेंड्स ही जाएंगे. मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं कि RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव है या नहीं है. ठीक है ना. ये बताओ, RH पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पॉजिटिव ओनली और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. बताओ. RH positive can receive blood from RH positive, RH negative both, correct? And can donate blood only to RH positive, है ना. So ये simple है. It can receive blood from positive, negative, but can donate blood only to positive. Similarly, RH negative can receive blood only from negative, but it can donate blood to positive, negative. अब ये alternate होता है. तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब क्या. बी पॉजिटिव बी नेगेटिव. ठीक है. तो ये हो गया ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस ओ माइनस and here AB will be plus. Similarly, this is going to be A minus B minus, yeah, and here it is going to be plus as well as minus. Similarly, ये RH positive है, so O plus O minus, and here it is going to be A plus B plus AB plus O plus. Here this is O minus, and this is going to be plus minus plus minus plus minus plus minus. If you look at this here, AB RH positive is the universal donor, universal recipient, and O positive is the universal recipient. मतलब वेरी गुड खुशी. मतलब अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो A और RH पॉजिटिव दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को आप अलग अलग लिखोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे. दोनों को साथ में सोचने बैठोगे तो नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ वॉट एवर माइट बी द ब्लड ग्रुप्स. ओके. अब यूनिवर्सल डोनर के लिए क्या ये होना चाहिए प्रॉपर्टीज, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. ओके. तो अगर आप मेरा एबीओ ये ब्लड ग्रुप सिस्टम देखोगे तो RH नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर. इसके पास नो एंटीजन है. ठीक है. सिमिलरली O इज द डोनर. इसके पास भी नो एंटीजन है. तो इसका मतलब अगर मैंने आपको 8-10 ब्लड ग्रुप दिया तो उसका यूनिवर्सल डोनर के पास क्या होना चाहिए. What is the property which will make it universal donor? It
should not have any what? It should not have any antigens. It should not have any antigens with respect to the given blood groups. तो अगर 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम के बजाय मैंने 5 ब्लड ग्रुप सिस्टम दे दिया और आपको बोला उसमें से यूनिवर्सल डोनर निकालो, तो आपको क्या चेक करना है? यूनिवर्सल डोनर के पास कोई भी ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर के पास कोई भी ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है तो वो उसको कैसे मारेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, करेक्ट? सो वो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करेगा? वो कभी कैसे एक्सेप्ट करेगा? इट शुड नॉट हैव एनी व्हाट? It should not have any antibody. It should not have any antibody with respect to blood group system. या बच्चे इसको एक दूसरे तरह से भी हम बोल सकते हैं, it should have all antigens. ये भी तो बोल सकते हैं ना, जिसके पास all antigens होंगे उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, करेक्ट? So it should have all antigens with respect to the given blood groups. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर मैं ABO सिस्टम और RH सिस्टम में अप्लाई कर दूं, तो ABO सिस्टम में कितने ग्लाइकोप्रोटीन्स है? A और B है, राइट? और RH सिस्टम में कितना ग्लाइकोप्रोटीन है? 1। तो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट के पास होना चाहिए A प्रोटीन, B प्रोटीन एज वेल एज RH प्रोटीन, A प्रोटीन, B प्रोटीन एज वेल एज RH प्रोटीन। समझा? तो अगर इसके पास तीनों होंगे, A प्रोटीन, B प्रोटीन, RH प्रोटीन होंगे, तो वो बन जाएगा यूनिवर्सल डोनर। सिमिलरली अगर उसके पास A भी नहीं है, B भी नहीं है और RH भी नहीं है, तो वो बन जाएगा यूनिवर्सल डोनर। A नहीं है, B नहीं है, तो ब्लड ग्रुप का O नाम हो जाता है। RH नहीं है तो ब्लड ग्रुप का नाम हो जाता है RH नेगेटिव। Did we understand the concept of universal donor, universal recipient? ठीक है। नाउ हम सिर्फ ABO और RH के बारे में बात करते हैं। याद रखना, देयर आर 28 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आल्सो, ओके? बट लकीली फॉर अस, या तो वो 28 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स एक्सट्रीमली रेयर है, होते ही मतलब मेजॉरिटी ब्लड ग्रुप सिस्टम में ह्यूमंस में नॉन एंटीजन होते हैं, या उसमें वीक रिएक्शन होता है। मतलब अगर वो मिसमैच कर दिया तो रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो अब वीक रिएक्शन होता है, इसके वजह से हम उसको मैच नहीं करते हैं। ABO सिस्टम और RH सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है अगर मिसमैच हुआ तो ये तो हमको पक्का मैच करना है, बट बाकी 28 ब्लड ग्रुप्स हमने मैच नहीं भी किया तो भी चलेगा। हाउएवर अगर हमने मैच नहीं किया तो भी एक वीक रिएक्शन हो सकता है। अगर हमने मैच नहीं किया तो भी वीक रिएक्शन हो सकता है। तो याद रखना, हमेशा क्या होता है पता है? जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ओके, जब भी अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होगा? हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो करते हैं, ओके, ग्रेजुअली करते हैं, ताकि अगर रिएक्शन हो तो पता चले। हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन इन द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। ऐसा ब्लड लगा के चला नहीं जाता है डॉक्टर। टेक्निकली अ डॉक्टर has to be, or a staff should be present when the entire blood transfusion is happening under the supervision of a doctor। क्योंकि अगर उसको वीक रिएक्शंस होते हैं तो डॉक्टर के पास मतलब जब उनको वीक रिएक्शंस होते हैं ऐसा, तो हमारे पास कुछ मेडिसिन रहते हैं जिससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले तो रोक के और वो रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच्ड है भी
तो भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शंस हो सकते हैं. ओके, इफ यू डिडंट नो दिस, अगर आपको लगता था कि आप बॉटल से ब्लड ले आओ, पहले तो बॉटल में मिलता नहीं है आजकल, ठीक है, बैग में मिलता है प्लास्टिक के, ले आओ ब्लड बैंक से और चढ़ा दो तो आदमी, एंड सेम ब्लड ग्रुप है, मतलब सपोज योर ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, एंड अगर आपको किसी ने ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया तो आपको बिल्कुल रिएक्शन होगा ऐसा नहीं है. 28 ब्लड ग्रुप्स और भी है, शायद एक वीक रिएक्शन हो सकता है. दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज डन इन द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. ओके, पहली बात. दूसरी बात, एक ब्लड बैग एक टाइम पे चढ़ाते हैं तो एक ब्लड बैग में अराउंड 350 ml ऑफ ब्लड ही होता है, बाकी 150 ml ऑफ एंटी कोएगुलेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होता है. तो अगर हमको जरूरत पड़ी तो ही हम दूसरा ब्लड बैग लेते हैं. सो वी ट्रांसफ्यूज ब्लड स्लोली, वन बैग एट अ टाइम. ऑल्सो एज डॉक्टर्स हमारे पास एक और मेथड है वो चीज देखने का, जिसमें हम एबीओ सिस्टम नहीं देखते हैं. ठीक है, अब ये सुनना ध्यान से. सो अपना डोनर है और अपना रेसिपिएंट है. मेरे को एक बात बताओ, डोनर का ब्लड का कौन सा हिस्सा एंटीजन, मतलब रेसिपिएंट विल आइडेंटिफाई डोनर के ब्लड का कौन सा हिस्सा एज एंटीजन? कम ऑन इन द चैट बॉक्स राइट डाउन. जब मैं डोनर का पूरा ब्लड दूंगा, राइट, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ होता है. तो रेसिपिएंट का ब्लड डोनर के कौन से हिस्से को आइडेंटिफाई करेगा एज अ फॉरेन बॉडी? करेक्ट खुशी? राइट, राइट, राइट ना, ब्लड ग्रुप, यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर नाउ. आरबीसी है ना, उसके ऊपर ही तो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है. और रेसिपिएंट के ब्लड का कौन सा हिस्सा उसको रिजेक्ट करेगा? ठीक है, याद रखना, रेसिपिएंट के उस हिस्से में एंटीबॉडी होनी चाहिए. सो डोनर का कौन सा हिस्सा को आइडेंटिफाई करेगा और रेसिपिएंट कौन से हिस्से से उसको रिजेक्ट करेगा? वेरी गुड, प्लाज्मा से रिजेक्ट करेगा. समझा आपको? क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं. तो मैं क्या करता हूं कि डोनर के ब्लड में से आरबीसी थोड़ा सा सेपरेट करता हूं और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में मिक्स कर देता हूं ना. अगर वहां पे abnormal एंटीबॉडीज होंगी तो आरबीसीज विल बी डिस्ट्रॉयड. वी कॉल दिस क्रॉस मैचिंग. समझा? सो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी ट्राई टू डू अ क्रॉस मैचिंग. उस ब्लड बैग में से थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और रेसिपिएंट के प्लाज्मा को मिक्स करते हैं. अगर जब वो मिक्स मैच करते हैं और मुझे दिखेगा कुछ रिएक्शन, नाउ व्हाट इज द रिएक्शन? नाउ if there is a mismatch in blood groups, okay, जिसको हम बोलते हैं mismatch blood transfusion. If there is a mismatch blood transfusion, so what happens is the antibodies present in the plasma, they are shaped like Y. So antibodies are shaped like Y. They will form a network and they will stick to the RBCs. Okay, this process is called agglutination. Okay, it's something like precipitation. Yeah, but precipitation में normally क्या होता है, the solid will settle down. इसमें solid is not the reason why it is settling down. इसमें antigen antibody complex बनता है. Antigen present on RBC, antibody present on the plasma, and that reaction is called agglutination. ठीक है, agglutination क्यों होता है? Because antigen present होता है RBC पे और antibody present होता है plasma में. So that is why antibody present on RBC is also called agglutinogen. Word ending with ogen here means to generate. So agglutinogen is the one which is responsible for agglutination, and antibody is a protein which participates in it. So it's called agglutinin. Mark it very, very important. Now,
एक्सटर्नली हमको कैसे दिखेगा कि आरबीसी में क्लम्पिंग हो गया, आरबीसी क्लम्प होके मतलब एक साथ जुड़ के और नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। सो मैं क्या करूंगा, डोनर का आरबीसी लूंगा और रेसिपिएंट का प्लाज्मा लूंगा। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि वो ए बी ब्लड ग्रुप है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर मैंने आरबीसी लिया, प्लाज्मा लिया और अग्लूटिनेशन नहीं हुआ, मतलब क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी नहीं हुई, इसका मतलब दैट ब्लड इज रेडी टू बी ट्रांसफ्यूज। समझा? दैट ब्लड इज रेडी टू बी ट्रांसफ्यूज। Did we understand this much? Right? Take care of the words. Agglutinogen is another word for antigen. Agglutinin is another word for antibody. तो कभी कभी अगर ये वीक रिएक्शंस को भी मुझे ये करना है तो मैं सिर्फ डोनर का आरबीसी, रेसिपिएंट का प्लाज्मा, दोनों को मिक्स कर दूंगा, और अगर मुझे कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखा कॉल्ड अग्लूटिनेशन, तो मैं वो ब्लड नहीं दूंगा, और मुझे नहीं दिखा तो मैं ब्लड दे सकता हूं। लेकिन ब्लड देने का प्रोसीजर सेम है, स्लो देना पड़ेगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर देना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन है कि जब हम डोनर का ब्लड रेसिपिएंट में डालते हैं, है ना, सो डोनर के ब्लड में आरबीसी है, डोनर के प्लाज्मा में भी तो एंटीबॉडीज है ना, ओके। रेसिपिएंट के पास प्लाज्मा है, करेक्ट, जिसमें एंटीबॉडीज है, और रेसिपिएंट का भी आरबीसीज है। सो एक क्वेश्चन है कि जब ब्लड हम डोनर का रेसिपिएंट में डालते हैं तो डोनर का एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के आरबीसीज के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है। टेक्निकली वो कर सकता है, बट अंडरस्टैंड हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले हम ब्लड डोनर से रेसिपिएंट में दे रहे हैं, रेसिपिएंट के पास ऑलरेडी 5 लीटर ब्लड है, और डोनर से हम 350 ml ब्लड देते हैं, है ना, विच इज नॉट इवन हाफ अ लीटर। यस, अब इसका 50% ही प्लाज्मा है, 55%। समझा? मतलब 5 लीटर ब्लड में अराउंड 175 ml प्लाज्मा गया। तो जो भी थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज जाते हैं, दे माइट कॉज अ वीक रिएक्शन, बट देन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड इवेंचुअली। सो डोनर का एंटीबॉडी रेसिपिएंट के साथ इंटरेक्ट करने का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज 5 लीटर ब्लड में आप इतना थोड़ा सा प्लाज्मा डाल रहे हो। बट आरबीसी जब आप डालते हो तो आरबीसी इज द मेजर चंक विच इज गोइंग, एंड आरबीसी इज द वन विच इज आइडेंटिफाइंग। समझा? मतलब इसका एंटीबॉडी कितने ml में होगा? करीब 170 ml में इसका एंटीबॉडी होगा, और इसके आरबीसी कितने ml होंगे? 5 लीटर का अगर मैं 45% ले लूं तो ये अराउंड 2.35 या 2.4 लीटर आरबीसी है। समझ रहे क्या हो रहा है? सो दैट देयर इज नेवर इनफ एंटीबॉडीज to kill all the RBCs or damage all the RBCs. Whatever damage happens is very, very minimal, and for the greater good we take some risks, some reactions. ठीक है? So this is how donor ka blood, even though it enters the recipient, it does not cause any damage to the recipient. Clear? Then we move on to the next thing, and that is called inheritance of these. Inheritance of blood group. How do we inherit? Yeah, आप सबने स्कूल में मेंडल्स लॉ पढ़े होंगे। Yes. Now, based on that, first we will do the inheritance of RH protein. ठीक है? ये सिंपल मेंडल लॉ फॉलो करता है
say the gene R produces Rh protein. The gene capital R produces Rh protein, and this small r doesn't produce Rh protein. Yes. So both these genes are, by the way, the same genes, but they are alternate forms of each other. So we call them alleles. So capital R is an allele of small r. Okay? Now, can you tell me which one, capital R or small r, mein se which one is dominant? Come on, tell me which one is the dominant allele? सबको याद है मेंडल्स लॉ, कैपिटल आर स्मॉल आर हमने यूज किया है. टॉल ड्वार्फ था कैपिटल टी स्मॉल टी. Yes, yes, all of you are right. Capital R is dominant and small r is recessive. ठीक है. So अब एक ह्यूमन बीइंग के पास ये एलील्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में होते हैं, होमोलोगस. So human beings के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हर एक. So we have 46 chromosomes, right? But we call them 23 pairs because one comes from the mother and one comes from the father. So एक ह्यूमन बीइंग के पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं. एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल आर है. दूसरा ऑप्शन क्या होता है? एक क्रोमोसोम पे स्मॉल आर है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी स्मॉल आर है. तीसरा, एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल आर है. इफ यू रिमेंबर, ये दोनों के पास सेम एलील है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस, है ना? या होमोजाइगस को मेंडल ने बुलाया था प्योर. स्मॉल आर अगेन ये सेम है, तो इसको भी हम बोलते हैं होमोजाइगस. इसको भी बोलेंगे प्योर. और जो बीच वाला है उसको बोलेंगे हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस. ये वर्ड याद है? होमोजाइगस, दोनों सेम. यस. नाउ कैपिटल आर अगर होगा तो इसके पास RH प्रोटीन प्रेजेंट होगा, मतलब ये पर्सन RH पॉजिटिव होगा. स्मॉल आर हुआ तो इट विल नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, सो ये पेशेंट RH नेगेटिव होगा. कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ तो क्या होगा? कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल आर एक्सप्रेस होगा, मतलब इसके पास भी RH प्रोटीन होने वाला है. सो दिस इज RH पॉजिटिव. तो what conclusion do we come to from here? अगर कोई RH पॉजिटिव है तो या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या तो वो हेटेरोजाइगस हो सकता है. और अगर कोई RH नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली होमोजाइगस रिसेसिव होगा. करेक्ट? जैसा हम लोग टॉलनेस ड्वार्फनेस करते थे, ये इनहेरिटेंस ऑफ RH जीन, R जीन वैसे ही होता है. सो योर थर्ड रिसर्च क्वेश्चन फॉर द डे. पहला रिसर्च क्वेश्चन था आरबीसी, मतलब सॉरी, AB ब्लड ग्रुप किसने बनाया? ठीक है. Anyways, third research question is this. You have to tell me the chromosome number in humans जिसमें the gene for RH protein is present. मतलब ये जो कैपिटल R जीन है ना, वो कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है? And take one more research question. In which chromosome do we have the ABO blood group का जीन? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस ध्यान से करके लाइएगा. आई एम सीइंग रिसर्च क्वेश्चन 3-4 बच्चे ही करते हैं. अगर सब बच्चों को नहीं करने में इंटरेस्ट है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लेक्चर्स ही मत अटेंड करिए. I will not give you any research question for time pass. They always are relevant to NEET and important as far as biology is concerned. NEET biology is concerned. Okay. So with this logic, let's understand this. Suppose one parent is RH positive and the second parent is also RH positive. What can their children be? Come on, type it in the chat box and tell me. What are the possibilities of the children?
if one parent is Rh positive, the second parent is also Rh positive, what possibly their children's blood group could be? अब इसमें AB सिस्टम का बात ही नहीं चल रहा है, RH का ही बात चल रहा है. ओके, अगर एक पेरेंट RH पॉजिटिव है, दूसरा पेरेंट भी RH पॉजिटिव है, तो बच्चा क्या हो सकता है? Now majority of y'all have given me an incorrect answer. Okay, so let's see. अगर RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव दो हो सकते हैं, कैपिटल आर हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है ना? तो इसमें 3 क्रॉसेस बनेंगे. कैसे? या तो दोनों पेरेंट्स कैपिटल आर हैं, ठीक है, या तो एक पेरेंट कैपिटल आर है और दूसरा पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर है, या तीसरा क्रॉस ऐसा हो सकता है कि दोनों पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर है. समझा? आप लोगों को क्रॉसेस बनाने आता है? विल जस्ट हेल्प यू विद दिस. अगर एक पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो दो तरह का गैमेट्स बनाएगा, एक में कैपिटल आर जाएगा और दूसरे में कैपिटल आर जाएगा, राइट? सो ये सपोज मदर के गैमेट्स हैं, फादर भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो मदर के गैमेट्स वो है तो फादर के भी गैमेट्स वही रहेंगे, है ना? तो अगर मदर का ये गैमेट फादर का ये गैमेट मिक्स हुआ तो बनेगा कैपिटल आर. This is going to be capital R small r, this is going to be capital R small r, and this is going to be small r small r. 3 will be RH positive and 1 will be RH negative. अगर ये वाला लिया तो all kids are going to be RH positive, ठीक है? Because कोई भी कॉम्बिनेशन में स्मॉल आर आता ही नहीं है. ये लिया, ऑल किड्स विल बी RH पॉजिटिव. क्यों? एक ही जगह स्मॉल आर आता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा रहेगा वो हमेशा कैपिटल आर ही होगा, है ना? और यहाँ पे कैसा है, 3 RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव भी हो सकता है. सो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स इन चिल्ड्रन इफ द पेरेंट्स आर RH पॉजिटिव, क्योंकि हमको तो इंटरनली पता नहीं है. अगर पेरेंट्स RH पॉजिटिव होंगे तो चिल्ड्रन RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. क्वेश्चन पूछा है पॉसिबिलिटी, है ना? है ना? तो अगर दोनों पेरेंट्स RH पॉजिटिव है तो चिल्ड्रन RH पॉजिटिव भी हो सकते हैं और RH नेगेटिव भी हो सकते हैं. चलो, सपोज एक पेरेंट RH नेगेटिव है और दूसरा पेरेंट RH नेगेटिव है, तो चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ. If say mother is RH negative and father is RH negative, then what will the child be? Very good, Khushi. Very good, Devangi. जय, सही जवाब. तो सब लोगों को अभी ये लॉजिक समझा, राइट? कि अगर ये होने वाला है तो स्मॉल आर है ना, जीन्स का स्मॉल आर ये जीन का होगा, तो इसका मतलब इनके सारे बच्चों के पास स्मॉल आर ही होने वाला है. मतलब इनके सारे बच्चे RH नेगेटिव ही होंगे, ठीक है? सो अगर दोनों पेरेंट्स RH पॉजिटिव है तो बच्चा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव हो सकता है. अगर दोनों पेरेंट्स RH नेगेटिव है तो बच्चा RH नेगेटिव ही होगा. दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं. लेट्स कम टू द थर्ड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक पेरेंट RH पॉजिटिव है और दूसरा पेरेंट RH नेगेटिव है. चलो बताओ क्या हो सकता है? अगर एक पेरेंट RH पॉजिटिव है और दूसरा पेरेंट RH नेगेटिव है तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? Yes, majority of you have given me the correct answer. Yes, you have understood this. अभी RH पॉजिटिव है सपोज, तो ये कैपिटल R स्मॉल r हो सकता है और RH नेगेटिव स्मॉल r हो सकता है. अगर ये हुआ तो क्या होगा? The one parent will produce these two gametes, one parent will produce this gamete only. So capital R small r हो सकता है. So this child can be RH positive or RH negative. इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है कि फादर ऐसा हो सकता है, मतलब एक पेरेंट ऐसा एक पेरेंट ऐसा, तो इसके सारे बच्चे ऐसे होंगे, करेक्ट? पर हमको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पूछा है. सो इफ द पेरेंट इज RH पॉजिटिव,
or negative, the child can also be Rh positive or Rh negative. So with this table, you have understood that children can have a different blood group as compared to their mother or parents. Now, mother bears her child for 9 months and their blood groups are different. They will have some kind of a blood group reaction. So we are going to study that. And also we are going to study how ABO blood group system is inherited, but that will happen in the next class. Thank you, children. Thank you very much. God bless you. We are going to continue. Please do the research question well and come. We are going to study what will happen if the children have different blood groups than the mother, and how ABO system is inherited. Yeah. Bye-bye. Take care. Thank you.